Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that since past many videos, we are doing chapter 9 of your English main course book. The name of the chapter is India, My Country. And as you know, the name says India, My Country. This chapter is about India, our country. And in this chapter, some interesting informations about our country is given, about which I have told you in my previous videos. अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसी के बारे में आपको कुछ information दी है as per the informations given in the chapter. Today also I'm going to continue with the explanation of the chapter. The rest of the paragraphs I will be explaining you, which are related to different national symbols. But let's revise what we have studied in this chapter till date. जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको मैं एक क्विक रिवीजन करा दूंगी. हालांकि आपने पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट वाइज वो सारी चीजें बताई थी जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल द पॉइंट्स. आई विल बी verbally revising you what we have done in the previous video, what I have explained in the previous videos. Children, I have told you that India is an ancient country. India is 7th in the world. India's position is 7th in the world in terms of area. And India is surrounded by water from 3 sides. Our country is surrounded by water from 3 sides, and it is called a peninsula because it is surrounded by 3 sides from water. To its west is Arabian Sea, to its south is Indian Ocean, and to its east is Bay of Bengal. So 3 sides से ये water से surrounded है, घिरा हुआ है. And we should be proud to know that an ocean is named after our country. एक ओशन का नाम हमारे देश के नाम के साथ रखा गया है, हमारे देश के नाम से उसका नाम जुड़ा हुआ है, and that is Indian Ocean. Children, हमारे देश के नॉर्थ में माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज, and that mountain range it acts as a protective wall. एक वॉल की तरह ये काम करता है. ये हमें दुश्मनों से बचाता है, हार्श क्लाइमेट से बचाता है. अगर ये रेंज नहीं होता, ये जो पर्वत श्रृंखला नहीं होती, तो हमारा देश भी बहुत ही ठंडा देश होता, बहुत यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती, प्लस हमें दुश्मनों से भी खतरा रहता. तो ये एक वॉल की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है. और जो नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में जाना कि हमारे देश को जो ये नाम भारत मिला है वो कैसे मिला है. Children, there was a king named Dushyant and his wife Shakuntala. उनका बेटा था भरत, and Bharat was a brave child. When he was very small, he could count the teeth of cubs. वो जो शेर का बच्चे होते हैं, वो उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन लेते थे. तो इतने बहादुर थे. और इतना ही नहीं, वो बाकी जंगली जानवर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते थे, इतने बहादुर थे. तो उन्हीं ब्रेव किंग के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है. फिर इस चैप्टर में हमने जाना नेशनल फ्लैग के बारे में. चिल्ड्रन, नेशनल फ्लैग it reminds us that we belong to one nation. We may speak different language, we may live in different state, we may have different thinking, different ideologies, but we belong to one country, one nation, and that is India. And our flag, this is a symbol of our unity. Our flag is called tricolor. In Hindi it is called Tiranga because it has color of 3 bands. It has 3 bands of different colors, 3 different colors, and a chakra at the center. हमारा जो तिरंगा है, ट्राई कलर है, इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं और अलग अलग रंग हैं, इनके अलग अलग मायने हैं, सिंबलाइज करते हैं. सबसे जो टॉप मोस्ट है दैट इज सैफरन, जिसे हिंदी में हम केसरिया बोलते हैं.
and it symbolizes, it stands for courage, it stands for sacrifice. The second band is of white color, and it stands for truth and peace. The third band is of green color, and it stands for life, it stands for prosperity. At the center of our national flag is a wheel which is called chakra. It is taken from Ashok Chakra. Ashok was a great emperor, एक महान राजा सम्राट थे जिन्होंने अशोक स्तंभ बनवाया था सारनाथ में, और अभी भी वो सारनाथ में है, दो वो स्तंभ जो है, that pillar has broken, so it has been kept in the म्यूजियम में रखा गया है. वहीं से इस अशोक चक्र को लिया गया, अशोक स्तंभ से, जिसमें 4 लायंस बने हुए हैं. And that chakra has 24 spokes. उसमें 24 spokes हैं, because one day has 24 hours. So it stands for the continuity of time. Time never waits for anybody. It moves on. And every country has its nation, has its emblem. हर nation का अपना एक emblem होता है. जितने जो भी दुनिया में free nations हैं, they all have their emblem, national emblem. So our country also has one emblem, and that emblem is of 4 lions. उसमें आप 4 शेर बने हुए देखेंगे, and all the 4 lions are facing the different directions. All 4 directions. जो 4 दिशाएं हैं, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो ये जो 4 शेर हैं, 4 लायंस हैं, दे आर फेसिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शंस. और उसके नीचे इन्हीं 4 लायंस के नीचे एक चक्र बना हुआ है. उस चक्र के राइट में एक बुल बना है और लेफ्ट में एक हॉर्स बना हुआ है, और उसके नीचे इंस्क्राइब्ड है सत्यमेव जयते. Children, I have told you in the previous video that this that caption of Satyamev Jayate is taken from one of the Upanishads. एक उपनिषद में एक श्लोक है, उसमें से इसे लिया गया है, जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होगी या होती है. और ये जो 4 लायंस हैं, ये किस चीज के सिंबल हैं? दे सिंबलाइज जस्टिस एंड इक्वालिटी. चारों दिशाओं में न्याय हो, चारों दिशाओं में समानता हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको न्याय मिले, उसका प्रतीक है. और जो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, ये इस बात को बताता है कि सच हमेशा जीतता है, चाहे आप जितने भी ट्रिक्स कर लीजिए, बट सच की हमेशा जीत होती है. और ये जो नेशनल एम्बलम है, ये आपको हर करेंसी नोट पे, हर कॉइन पे आपको देखने को मिल जाएगा. जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पे ये आपको देखने को मिल जाएगा. तो ये था नेशनल एम्बलम के बारे में. Now we'll talk about national anthem. जो नेशनल इसमें आता है, नेक्स्ट इज नेशनल एंथम. और नेशनल एंथम इज जन गण मन and so on. I will not sing national anthem because आपको पता है कि नेशनल एंथम जो है वो एक नॉर्मल एक हम गाना इसको नहीं मानते हैं. इट इज एंथम, इट इज वेरी रिस्पेक्टफुल. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम, एंड वेन एवर यू हियर दिस, यू मस्ट स्टैंड इन द ऑनर ऑफ आवर नेशनल एंथम. इसे सीधे खड़े होकर गाया और सुना जाता है. और जो पूरा ये जनगण मन अधिनायक चाहिए, इसको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ही गाना चाहिए, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है. पूरा जो हमारा नेशनल एंथम है, इसका एक बहुत ही सुंदर मीनिंग है. इसे कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और हमेशा रिस्पेक्ट के साथ इसको गाना चाहिए. इसे कंपोज किसने किया था? composed by Gurudev Rabindra
टैगोर या ठाकुर, हिंदी में वैसे हमको वो एक बांग्ला कवि थे, बांग्ला लेखक थे, बंगाल के रहने वाले थे और वो कविताएं लिखते थे, गीत लिखते थे, कहानियां लिखते थे, उपन्यास, नॉवल जिसको बोलते लॉन्ग स्टोरीज लिखते थे। उन्होंने ही इसे कंपोज किया है। ये बंगाल जो वेस्ट बंगाल है वहां के रहने वाले थे और इनका नाम क्या है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर आप बोल सकते हैं। इन्होंने कई गाने कंपोज किए हैं। इनके गानों को एक अलग नाम से जाना जाता है, बोला जाता है रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत के नाम से इनकी जो कंपोज किए हुए गानों को वैसे माना जाता है। ये उनकी हमारे जो नेशनल एंथम है उन्होंने ही लिखा था। और अभी आप नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। बस आप इतना नाम याद रखिए कि हमारा नेशनल एंथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने कंपोज किया था। नेक्स्ट कम्स नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, चलिए जो नेशनल सॉन्ग है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है ये क्या है? ये भी आप अपने असेंबली टाइम में सबसे पहला जो सॉन्ग आप गाते हो ड्यूरिंग योर असेंबली, यस, क्या गाते हैं आप? वंदे मातरम। यस, वंदे मातरम जो आप गाते हैं वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम गाते हैं ना, वही है हमारा नेशनल सॉन्ग। एंड इसको किसने कंपोज किया था? कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने पहली बार जो नेशनल सॉन्ग था, एक बुक थी आनंद मठ, उसमें इस गाने को लिखा था फर्स्ट टाइम। ये आजादी से पहले जब हमारा देश फ्री नहीं हुआ था, इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तब उन्होंने एक बुक लिखी थी आनंद मठ और उसमें ये गीत था और वहीं से इसे लिया गया और इसे हमारा नेशनल सॉन्ग बनाया गया। क्या नाम है? वंदे मातरम। बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको वंदे मातरम याद रखना है और किसने इसे कंपोज किया है ये याद रखिएगा। कंपोज किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये चट्टोपाध्याय जो है वो ओरिजिनल सरनेम है, लेकिन जो बाद में ये चैटर्जी हो गया, जैसे मुखोपाध्याय मुखर्जी हो गया, चट्टोपाध्याय चटर्जी हो गया। ठीक है, तो ये आप चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हैं, चैटर्जी भी बोल सकते हैं। चैटर्जी थोड़ा इजी स्पेलिंग है इसलिए। तो ये हुआ हमारा नेशनल सॉन्ग के बारे में। चलिए बाकी कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेशनल एनिमल है, यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। कौन है नेशनल एनिमल? और नेशनल एनिमल our national animal is tiger, है ना। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। टाइगर इज कंसीडर्ड एज आवर नेशनल एनिमल। आवर नेशनल फ्लावर हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। यस, लोटस वही जो एक्वाटिक फ्लावर है, पानी में खिलता है, दैट लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। देन विच इज आवर नेशनल बर्ड?
is पीकॉक। आप सबने मोर देखा है, बिल्कुल आपके तो स्कूल के प्रेमिसेस में भी एक दो बार मोर आ गया है। तो नेशनल बर्ड हमारा क्या है? पीकॉक। अ ब्यूटीफुल बर्ड विद ब्यूटीफुल, उसके जो प्लमेज है, जो उसकी जो टेल है, पंख होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं ना, तो वो हमारा नेशनल बर्ड है। नाउ विच इज आवर नेशनल फ्रूट? नेशनल फ्रूट, चिल्ड्रन, इंडिया का नेशनल फ्रूट है मैंगो। मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट। देन टॉकिंग अबाउट नेशनल ट्री। नेशनल ट्री क्या है? हमारा राष्ट्रीय पेड़ जिसको बोलते हैं, नेशनल ट्री या राष्ट्रीय वृक्ष जिसे कहा जाता है हिंदी में, नेशनल ट्री। यस, नेशनल ट्री इज बनियन ट्री। नेशनल ट्री इज बनियन ट्री, जिसे हिंदी में बरगद का पेड़ कहा जाता है। तो ये जो नेशनल ट्री है वो है बनियन ट्री। देन नेशनल करेंसी, इंडियन करेंसी इज रुपी। जो हमारी देश की करेंसी है उसे क्या कहते हैं? रुपी कहते हैं। दीज आर द बेसिक नेशनल थिंग्स जो आपको जानना है, बहुत डिटेल में नहीं। एक नेशनल रिवर जान लेते हैं, विच इज आवर नेशनल रिवर? नेशनल रिवर इज गंगा रिवर, which flows through your own city। आपके शहर से बहती है गंगा, है ना। वाराणसी में तो लोग दूर दूर से आते हैं गंगा में डिप करने के लिए। गंगा के जो घाट है, बनारस के जो घाट है, वहां पे आते हैं घूमने के लिए। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहीं गंगा दर्शन के लिए, है ना। तो गंगा जो है वो हमारे देश की नेशनल रिवर है, इट्स नेशनल रिवर ऑफ आवर कंट्री। चलिए, तो ये हमने कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में जाना। एक बार देख लेते हैं। नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्लावर इज लोटस, नेशनल बर्ड इज पीकॉक, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल ट्री बनियन ट्री, नेशनल करेंसी रुपी एंड नेशनल रिवर गंगा। नाउ विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। थोड़ा नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। Children, there are 3 national festivals of our country. 3 national festivals of our country. Which are those? आपको पता है कौन कौन से हैं? आपने ईवीएस में पढ़ा हुआ है। चिल्ड्रन, फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, दिस इज अ नेशनल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय एंटायर नेशन। पूरा देश इसको मिलकर मनाता है। और अभी हमने रिसेंटली मनाया था ना, कब मनाया था इसको? 26th of January. Though you did not celebrate it in your school,
मीन्स आप स्कूल नहीं आए थे, बट वी सेलिब्रेटेड इट ऑनलाइन। हमने सेलिब्रेशन किया था, आपने अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के भेजी थी, ड्राइंग्स थी आपकी, डांस था, एंड फ्लैग होस्टिंग हुआ था, फ्लडिंग ऑफ फ्लैग होस्टिंग वाज डन। पर ये एक एक्सेप्शनल ईयर था, अदरवाइज हर साल आपके स्कूल में ये मनाया जाता है फेस्टिवल, पूरे पॉम्प एंड शो के साथ, पूरे जो पेट्रियोटिक फर्वर के साथ इसको मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। न्यू दिल्ली में इसको इस फेस्टिवल पर परेड होती है, आर्म फोर्सेस जो है उनकी मार्चिंग होती है, टैब्लोज निकाले जाते हैं, और ये एक बहुत ही खुशी का फेस्टिवल है। यस, बिकॉज इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम इस दिन रिपब्लिक हुए थे। अब रिपब्लिक के बारे में आप डिटेल में जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना, तब आप पढ़ोगे कि रिपब्लिक होना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। बट ये हमें जानना है, अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि ये एक नेशनल फेस्टिवल है, एंड ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे पेट्रियोटिक फीलिंग के साथ मनाया जाता है। ठीक है, जो सेकेंड नेशनल फेस्टिवल है वो है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, अब इंडिपेंडेंस डे क्या है, ये कब मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो देश है वो बहुत सालों तक ब्रिटिश रूल के अंदर था, इट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, और हम लोग फ्री नेशन नहीं थे। फिर उसके बाद हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, दे फॉट फॉर इट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, दे sacrificed their life for the freedom of our country, and finally our country became free on 15th अगस्त 1947 को हमारा देश फिर फ्री हुआ। और उस दिन से हम लोग हर साल, मतलब एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे अपने देश का मनाते हैं, और हम उन सभी लोगों को याद करते हैं, नेशनल लीडर्स को, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने इस फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया देश के लिए। पूरा देश उनको याद करता है। बेटा, ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको याद करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है, हमें तो हमेशा उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इतना एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं, उनकी सेक्रीफाइस की वजह से रह रहे हैं। इसलिए दे शुड बी रिमेम्बर्ड एवरी डे, एवरी मोमेंट। हमें कभी उनके सेक्रीफाइस को नहीं भूलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पर्टिकुलर डे। ये तो हम इसलिए इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं कि इस दिन हम फ्री हुए थे, अदरवाइज फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, उनको हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये हम मनाते हैं 26 जनवरी को हर साल, और ये मनाते हैं 15 अगस्त को। जो थर्ड नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती। अब गांधी जयंती क्या है? गांधी जयंती इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ द नेशन कहलाए जाते हैं। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। पीपल यूज्ड टू कॉल हिम बापू। बापू जो है गुजराती वर्ड है, जिसमें पिता को बापू बोला जाता है। और महात्मा गांधी हैं, वो जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे। ही वॉज फ्रॉम पोरबंदर, तो लोग उन्हें प्यार से बापू भी बोलते थे। बापू मतलब फादर। तो और वैसे उनको टाइटल मिला हुआ है फादर ऑफ द नेशन। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है कब होती है? 2 अक्टूबर को, 2 तारीख को, अक्टूबर 2 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, 2 अक्टूबर मतलब कि 2 अक्टूबर
के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है और ये एक नेशनल फेस्टिवल है। इस दिन क्या होता है, उनकी जो समाधि है दिल्ली में राजघाट, वहां पर लोग जाते हैं एंड जो लीडर्स है, नेशनल लीडर्स है, वहां जाते हैं, दे पे होमेज टू महात्मा गांधी। उस दिन भजन कीर्तन होता है उनकी समाधि पर। उनका फेवरेट जो भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये वाला भजन लोग गाते हैं, उन्हें याद करते हैं। उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम, देश की फ्रीडम में, उसको लोग याद करते हैं। उनकी टीचिंग्स को लोग याद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को लोग याद करते हैं। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो सोच थी, उसको लोग याद करते हैं। और ये दिन भी हमारा जो एक पूरा कंट्री एक साथ मनाता है। नेशनल फेस्टिवल का मतलब ही होता है ऐसे फेस्टिवल्स जिसे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाए। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल जिसे मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं मनाते हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जिसे पूरा देश एक साथ मनाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, इट्स रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, सब लोग मिलजुल कर जिसे मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। तो ये तीन जो थे ये हमारे जो है नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड था, जो मैंने आपको सारे जो इंफॉर्मेशन दिए हैं। इट इज ऑल अबाउट आवर कंट्री इंडिया। हमने इंडिया के बारे में इस चैप्टर में काफी कुछ जाना, मतलब आपने कुछ नया सुना, कुछ नया सीखा इस चैप्टर में। कुछ बातें हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, कुछ नई बातें मालूम चली आपको। ठीक है, तो ये इसी के साथ ही जो एक्सप्लेनेशन है इस पार्ट का, वो पार्ट खत्म हो गया। नेशनल फेस्टिवल्स मैंने आपको बता दिए, नेशनल सिंबल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब बचा है इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में अगेन आई विल गिव यू एक्सरसाइजेस दैट आर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर की एक्सरसाइज है, जो उसके चैप्टर के एंड में दिया जाता है, उसमें से जो ग्रामर का सेक्शन होगा, जो लैंग्वेज सेक्शन होगा, वो मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। आपके लिए मैं नए क्वेश्चंस जरूर दूंगी फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। एंड जो ग्रामर एक्सरसाइज होगी दैट वी विल डेफिनेटली डू, क्योंकि ग्रामर जो है वो बहुत प्रैक्टिस की चीज है, वो आपको हमेशा करना है। तो चलिए कुछ हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, we'll try to do first fill in the blanks from the chapter में से कुछ fill in the blanks कर लेते हैं। फर्स्ट वन, India's position is dash in the world. India's position is dash in the world. इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में? एरिया वाइज, ऑफ कोर्स एरिया वाइज की ही हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? Children, India's position is 7th. SEVENTH. India's position is 7th in the world.
India is surrounded by water from dash sides. India is surrounded by water from how many sides? इंडिया जो है वो पानी से कितने साइड से घिरा हुआ है? Children, you know the answer. India is surrounded by water from 3 sides. ठीक है? Dash sea is in the west of India. Dash sea is in the west of India. कौन सा sea है इंडिया के वेस्ट में? Which sea is there in the west side of India? It is Arabian Sea. Arabian Sea is in the west of India. Children, we have done 3 fill in the blanks. जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से मैंने ये आपके लिए 3 fill in the blanks फ्रेम किया, बट वी विल बी डूइंग मोर ऑफ इट. इसमें से और भी बहुत सारे अभी हमको fill in the blanks करने हैं. जस्ट आई हैव स्टार्टेड दिस एंड वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे. आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि इस तरह से हम कंटेंट में से एक्सरसाइज फ्रेम करेंगे. ठीक है, दिस इज जस्ट एन आइडिया. This is how we are going to do rest of the fill in the blanks. That will be framed from the chapter itself. Okay, we'll make some one word answer also. We'll do some true false also, and that all we will do in the coming videos. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, read the chapter and go through the difficult words and practice its pronunciation also. Reading practice is very important in English, so do that. And if you have any query, you are free to ask me in your online class. Okay, we'll meet in the next video. Thank you.